Hello students, today we will start the history part, chapter number 8, British Policies and Administration in India after 1858. In this chapter, we will study about the information about administrative changes made by the British government in India after first freedom struggle. How was the army recognized? What were British economic policies from 1858 to 1947? British education policy in India? How did the Indians benefit from the change brought about in British administrative policy? So students, British government suppressed the struggle of 1857, but a new phase began in Indian history. The British government was under pressure and so they decided to make important changes in administrative setup. What was the administrative setup? The British held the administrative and economic policies of East India Company responsible for the outbreak of 1857 struggle. Therefore, the British government decided to bring the company rule to an end forever in India. सो स्टूडेंट्स 1857 के स्ट्रगल के बाद जो गवर्नमेंट ने उस स्ट्रगल को सप्रेस तो कर दिया, दबा तो दिया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो बहुत अंडर प्रेशर आ गई, प्रेशर में आ गई कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, नया एडमिनिस्ट्रेशन सेट करना पड़ेगा क्योंकि जो कंपनी है वह कुछ गलत कर रही है। और इसलिए 1857 के स्ट्रगल के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कंपनी के हाथों से रूल ले लिया जाएगा, सत्ता ले ली जाएगी और सीधा इंडिया पर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधे ही राज करेगी। स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड द चैप्टर वेरी डीपली. आई विल गिव यू ओनली समरी. So the Act of 1858, implementing the changes in administrative policies, the British government passed a Charter Act in 1858 known as Act of 1858. Following points were incorporated in the ordinance. First were the Act put an end to the rule of East India Company in India. The control of the administration of India was transferred to the Queen of England. The Viceroy was made representative of the Queen in India. A post of Secretary of India and his council was continued in England for control over administration in India. The Secretary of India was entrusted with the task of administrative setup. तो जो 1858 के जो एक्ट थे, अधिनियम थे, वो इस तरह थे कि भारत में जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका प्रशासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। भारत का प्रशासन सीधे इंग्लैंड की महारानी के अंडर में कर दिया गया। वायसराय को भारत में इंग्लैंड की महारानी का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, प्रतिनिधि बना दिया गया। भारत की प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए इंग्लैंड में भारत का एक सचिव और उसकी परिषद का निर्माण कर दिया गया और जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस सचिव को, सेक्रेटरी को उसका पूरा दारोमदार सौंप दिया गया। क्वींस प्रोक्लेमेशन. The last Governor General of East India Company, Lord Canning, was appointed the first Viceroy of India. So students, 1858 के बाद लॉर्ड कैनिंग जो था उसको रानी का, जो ब्रिटेन की रानी थी, उसका प्रतिनिधि बनाकर फर्स्ट वायसराय के रूप में भारत में अपॉइंट किया गया। The Queen of England issued a proclamation, and the proclamation of Queen contained, any new Indian state will not be annexed by the British government in India. It also promised to pay due respect to age-old customs and tradition of India. Justice will be imparted on the basis of equality, benevolence and religious tolerance. It promised not to disclaim the rights of Indian princes and their rights would be protected. There will be no discrimination on the basis of caste and religion to enter the administrative services. It promised to take measure for moral and material progress of India. Indian and the British will be treated as equal.
तो ये जो क्वीन ने प्रोक्लेमेशन दिया, इसमें कहा गया कि अंग्रेजी राज्य जो अंग्रेजी गवर्नमेंट है अब भारत का कोई भी नया क्षेत्र उसमें नहीं मिलाएंगे, भारत के रीति रिवाजों परंपराओं का सम्मान करेंगे, न्याय में समानता रखेंगे, उदारता और धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया जाएगा, राजाओं के सम्मान और अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा, इसके साथ साथ जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और भारत के लोगों की नैतिक और भौतिक उन्नति के उपाय किए जाएंगे और इसके साथ साथ भारत की जो प्रजा होगी उसका और ब्रिटिश की जो प्रजा है उसको एक समान माना जाएगा, ब्रिटिशर्स और इंडियंस को एक समान माना जाएगा, ऐसा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा। लेकिन जो शिक्षित वर्ग था उसने तो इसकी बहुत ही प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो वादे थे ये मात्र धोखा सिद्ध हुए, छलावा सिद्ध हुए, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। Control over Indian administration. By this time, British Empire had also started expanding in other parts of the world. Indian resources were used to bear the cost of British wars against other nations. So, the administrative system of India was under complete control of the ब्रिटिश। इस समय पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका पूरे विश्व में फैलाव होने लगा, विस्तार होने लगा और इंग्लैंड के इकोनॉमिक हित के लिए भारत और भारत की बहुत सारी चीजों का उपयोग किया जाने लगा। तो भारत के जो संसाधन थे इंग्लैंड के द्वारा यूज किए जाने लगे, दूसरे देशों से जो युद्ध हो रहे थे उनमें खर्च भी करने लगे हमारे भारत के संसाधनों का। इस तरह से भारत की जो संपूर्ण व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो उसका कंट्रोल पूरा इंग्लैंड के द्वारा किया जाने लगा। इंडिया सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरिस्ट। अंडर द 1858 एक्ट द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया was created and he was given all the affairs of India. A 15 members council was formed to assist him. He used to manage Indian affairs of administration from England and was accountable to the Parliament of England. तो 1858 का जो एक्ट था उसके अंतर्गत भारत में एक सेक्रेटरी के पोस्ट का निर्माण किया गया, उसे भारत सरकार की पूरी जिम्मेदारी उसे सौंप दी गई। इंग्लैंड में रहकर उसे भारत का जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका पूरा ध्यान रखना होता था और इंग्लैंड की संसद के प्रति वह उत्तरदायी होता था। इस तरह से उसके पास जो मेंबर्स होते थे वो 15 मेंबर्स होते थे और इसे ही इट वॉज कॉल्ड इंडिया ऑफिस, इंडिया ऑफिस कहा जाता था, भारतीय सचिवालय उसे कहा जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वायसरॉय एंड हिज काउंसिल, वी विल रीड अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो।